دعوت خطاب دیتا ہوں الحاج مولانا خواجہ شجاع الدین صاحب ٹی وی 99 کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور ایک اسکالر بھی ہیں. ان سے میں ادباً خواہش کرتا ہوں کہ وہ 3 طلاق کے اوپر اور خواتین کے حقوق کے اوپر آپ جو خطاب فرمائیں. اللہ وبرکاتہ. خدای سے تشریف فرمان عزت ماں اور خواتین حضرات، یہ 3 طلاقوں کے اوپر مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا گیا. میں تو عالم دین نہیں ہوں، مگر اگر ہم جتنے بھی اگر پروگرامس اگر کر رہے ہیں تو یہ چیز کو ہم بائیکاٹ کرنے کے لیے کوشش کریے. پرابلمس لائف میں آتے ہیں زندگی کے لائف پارٹنرس کے ساتھ، مگر اس کے سلوشنز بھی نکل سکتے ہیں. اگر ہم اس کے اوپر اگر محنت کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات، آپ کی جو بیویاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے پیش آئے تھے، اس طریقے سے اگر امت مسلمان کو اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کافی تبدیلی آ سکتی، کافی چینجز آ سکتے ہیں. اور ہم آج شادی بیاہوں میں لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہیں، قرض لے کے شادیاں کر رہے ہیں، پھر بعد میں اسی طلاق کے اوپر کیا پرابلمس ہو رہے ہیں. ہم چاہیے کہ وہ شادی بیاہ کے اوپر جو زیادہ سے زیادہ جو پیسہ خرچہ کیا جا رہا ہے اس کو بھی ہم رکائیں. سمپل شادی آسان کرو بول کے بول رہے ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے مشکلات میں ڈال رہے ہیں. جو خواتین جو بچیاں ہیں، کئی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں محض پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے، فائنینشیل پرابلمس کے نہیں ہونے کی وجہ سے. ہر ایک کا فرض عین ہے، اس کو ہم آسان اگر کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی شادی آسان ہو جائے گی. پھر یہ شادی جب آسان ہو جائے گی میاں بیوی میں بھی پیار اور محبت زیادہ رہے گا. نہیں تو ورنہ جیسا کہ تم اتنا خرچہ کرے ہم اتنا خرچہ کرے، صرف پیسوں کا بھرم ہے اور اسی میں کیا ہے کئی طلاقیں ہو جا رہی ہیں اور یہ فیصلے کیا ہے کئی دوسرے قوموں تک جا کے کرنا پڑ رہا ہے. اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے تو ہم ایک شریعت کے حساب سے ہمارا ایک بورڈ بنے، ہمارے ایک آرگنائزیشن بنے اور ہم اس آرگنائزیشن کے تحت اسلام کے تحت ہمارا اگر طلاق بھی ہو رہا ہے یا خلا بھی ہو رہا ہے تو اس کی ایک شریعت ایک بورڈ ایک بننے سے وہاں سے فیصلے ہو، بلکہ کیا فیصلے نہ ہو. میری یہ کوشش ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام کو اگر آگے بڑھا رہے ہیں تو ایک بورڈ اپن قائم کریں تو بورڈ سے فیصلے ہمارے حق بجانب ہوں گے اور قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے ہوں گے. اور جب قرآن جناب محمد مستان صاحب سے جو حیدرآباد کی مشہور اسکول کے کارسپونڈنٹ ہے اور ایک سوشل ایکٹیویٹسٹ ہے، جناب محمد مستان صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ سیرت النبی اکیڈمی کی تمام کوششوں پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہ نشیب تشریف فرما علی جناب محترم المقام علی خادری صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ، جناب شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا مدد اللہ علیہ، علی جناب سکندر معشوقی صاحب، علی جناب حسام الدین صاحب ڈائریکٹر ٹی وی 99. آج سیرت النبی اکیڈمی کی جانب سے خواتین کی دستخطی مہم جو کامن سول کوڈ کے سلسلے میں رکھی گئی ہے، میں خاص طور پر سیرت النبی اکیڈمی کے تمام اراکین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بہترین پروگرام منعقد کر کے ہندوستان کے ان تمام لوگوں کو چیلنج دیا ہے جو کہ ہمارے شریعت میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں. قابل مبارکباد ہیں یہ لوگ، انہوں نے بہت ہی اچھا اقدام اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے عزائم میں آسانی پیدا کرے اور کامیابی عطا کرے. جو بھی شریعت میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو نصب و نابود کر دے. میں اپنی دل کی گہرائیوں سے ان تمام سیرت النبی اکیڈمی کے اراکین کو، ذمہ داران کو تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ بولنے کا موقع. محمد مستان صاحب، اور حقیقت میں یہ ایک بہت پیاری بات ہے کہ سیرت النبی اکیڈمی کی جانب سے جو آج یہاں پہ دستخطی مہم خواتین کی لی جا رہی ہے، اس کا یہ مقصد نہیں کہ خالی دستخط لے لینا اور آفس میں جو ہے ان دستخطی پیپروں کو رکھ دینا،
बल्कि सीरत नबी एकेडमी का ये मकसद है कि हैदराबाद से नहीं बल्कि तेलंगाना के तमाम अजला से और आंध्र प्रदेश के तमाम अजला से, महाराष्ट्र के तमाम अजला से, हत्ता कि हिंदुस्तान भर में फिरकर तमाम हिंदुस्तान के अजला से जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं बसते हैं और सेकुलर लोग जहाँ रहते बसते हैं उनकी दस्तखत लेना, वहाँ पर जलसे मुनक़िद करना और शरीयत के ताल्लुक से वहाँ पर अवेयरनेस कैंप्स चलाना और वहाँ की रियासती हुकूमतों को और मरकजी हुकूमत को वहाँ का मवाद ले कर देना और ये बताना मकसद है कि मुसलमान कभी भी ना अदालत का कोई फैसला और ना ही हुकूमतों का कोई फैसला शरीयत में बर्दाश्त कर सकता है, बल्कि सीरत नबी एकेडमी का ये मकसद है कि मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली खादरी साहब सदर नशीन सीरत नबी एकेडमी, मौलाना सैयद गुलाम खादर कुतुब हुसैनी साहब मोहम्मद एकेडमी, जनाब सिकंदर मास्टरी साहब, जनाब मोहम्मद मस्तान साहब, जनाब हुसामुद्दीन साहब और ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि आज ख़वातीन की दस्तखती मुहिम का सीरत नबी एकेडमी की जानिब से आगाज़ किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम अरबाब हुकूमत को और क़ानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को ये बताना चाहते हैं कि आप जिस बुनियाद पर हिंदुस्तान में शरीयत में तब्दीली की बातें कर रहे हैं, हम उसके सरासर खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर बाज़ ख़वातीन को साजिश का आलाकार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया गया। वो नामनहाद मुस्लिम ख़वातीन जिनका सिर्फ मुसलमान नाम है लेकिन हकीकत में वो गैर मज़हब इख्तियार कर चुकी हैं और गैर मज़हब के लोगों से शादी कर चुकी हैं, ऐसे ख़वातीन को फ़िरक़ा परस्त ताकतें आलाकार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने पेश किए। और ऐसी ख़वातीन ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि हम 50,000 ख़वातीन की दस्तखतें पेश कर रहे हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कानून में तब्दीली की जाए और बिलखुसूस ये जो तलाक का जो मसला है इस्लामी कानून को तब्दील किया जाए। तो आज इस दस्तखती मुहिम के ज़रिए हम उन तमाम को ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान मर्द और ख़वातीन तमाम शाना बशाना खड़े हैं और कुरान और हदीस पर मबनी जो शरई अहकाम है वो अज़ल से अबद तक इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बरकरार रहेंगे और हम तमाम कुरान और हदीस की उन तालीमात से मुतमईन हैं और अपनी ज़िंदगी तक बल्कि क़यामत तक इनमें किसी किस्म की तब्दीली और तहरीफ को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उस चीज़ को बताने के लिए आज हम हैदराबाद में इस मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस मुहिम को हम दीगर अजला में और दीगर मकामात पर भी तौसीह देंगे और हज़ारों लाखों दस्तखतों के साथ इसे हम हुकूमत हिंद को और दीगर एजेंसीज़ को पेश करेंगे। जैसा कि मुझसे कबल हुसामुद्दीन साहब ने कहा कि हमारे पास जो मसाइल हैं वो मसाइल को दूर करना ज़रूरी है। यकीनन अब देखिए कि दीगर मज़ाहिब के और मुसलमानों के मुकाबले में अगर दोनों के एदाद व शुमार अगर पेश किए जाएँ अगर तो सबसे कम तलाक़ की जो शरह है वो मुसलमानों में है, दीगर मज़ाहिब में तलाक़ जो ना बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे मसाइल हर मज़हब में पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना इंतहाई बदबख्ती की बात है और ये बदकिस्मती है कि बाज़ लोग इसका साजिश का सहारा बनकर उनका आलेकार बनकर उनकी साजिश में शामिल हो रहे हैं। हम इन कोशिशों की मजम्मत करते हैं और हम मुबारकबाद देते हैं मौलाना गुलाम समदानी अली खादरी साहब को कि वो इस मामले में जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे पैरवी कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो इस मामले में हर तरीके से आगे बढ़ें। हम तमाम उनके साथ में। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब तो यकीनन बहुत ही अच्छी बातें बताए हैं और जैसा कि आपने बताया कि कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को ये सोचना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क के कानून को बदलें और सरासरी तौर पे नहीं बल्कि परमानेंट तौर पे मुसलमानों के शरई मामलात में मदाखलत करना बंद करना होगा। और किस तरीके से बंद करना होगा कि ना हमारी नमाजों के बीच में आना होगा, ना हमारे पर्सनल मामलात के बीच में आना होगा, ना हमारी ईद बकरीद के बीच में आना होगा, बल्कि हिंदुस्तान में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सबको ये दस्तूरी हक दिया गया कि आप आज़ादी के साथ अपने मुल्क में
اپنے اپنے مذہب پر عمل پیرا رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ فرقہ پرست تنظیمیں پھر یہ بولنا کہ آپ بقرعید کو یہ مت کرو، آپ اپنی شریعت میں یہ مت کرو، آپ طلاق کے معاملے کو بدلو، آپ نکاح کے معاملے کو بدلو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر جو واجبی بات ہے، غیر دستوری بات ہے، جس کا سیرت النبی اکیڈمی کی جانب سے سخت نوٹ لیا جا رہا ہے، اور برابر ہر محاذ پر سیرت النبی اکیڈمی اس کے تعلق سے جدوجہد کرے گی اور سارے ملک کے مسلمانوں کو متحد کر کر جمہوری اور پرامن طور پر عدالتوں کو اور حکومت ہند کو ہم جو ہے دستخطی مہم پیش کریں گے، اور وقت ضرورت اگر پڑ جائے تو جمہوری انداز میں اور قانونی لیگل طریقے سے ہم دھرنا بھی منظم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جب تک کہ یہ تنظیمیں یہ چیزیں ہمارے شرعی معاملات میں مداخلت نہیں روکتی، انشاءاللہ سیرت النبی اکیڈمی برابر ہر طریقے سے جدوجہد کرتے رہی۔ اب میں صدر نشین سیرت النبی اکیڈمی علی جناب الحاج مولانا سید غلام سندانی صاحب قبلہ المعروف علی پاشا خادی صاحب قبلہ سے ادب خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنا صدارت خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مولانا سید غلام قادر خطور حسینی قادری صاحب، معتمد سیرت النبی اکیڈمی، مولانا سید خواجہ شجاع الدین افتخاری صاحب حقانی پاشا، علی جناب سکندر ماشقی صاحب، علی جناب مستان صاحب، علی جناب حسام الدین صاحب، اس مہم میں شریک میری مسلمان ماں اور بہن، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا ایک جنت ہے۔ یہ بات طے ہو گئی کہ ہم کو اللہ رب العزت نے جو زندگی عطا فرمائی، جو اس دنیا میں ہمیں روانہ فرمایا، تو ہمارے لیے یہ جتنی بھی زندگی ہے، جتنے بھی دن ہم کو اس زندگی میں گزارنا ہے، اس دنیا میں گزارنا ہے، یہ ہمارے لیے ایک قید خانہ ہے اور ہمارا ایک امتحان ہے۔ اب یہ امتحان کا نتیجہ روز محشر آئے گا کہ ہم نے اس امتحان میں کتنے نمبرات کمائے، کون سے سبجیکٹ میں ہم کامیاب ہوئے اور کون سے سبجیکٹ میں ہم فیل ہوئے۔ بڑے ہی آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی ایک امتحان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو بتلایا کہ تم اپنی زندگی دنیا میں اس طریقے سے گزارو، اللہ اس کے رسول نے جو چیز ہم پر حلال قرار دی وہ صبح قیامت تک حلال رہے گی، اور جو چیز کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا وہ صبح قیامت تک حرام رہے گی۔ پر المختصر یہ بات کہ یہ سارے جو قوانین ہیں، اسلامی جو قوانین ہیں، اس کو کہا جاتا ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسلام کا قانون، زندگی ہم کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ شرعی قانون صرف نکاح طلاق بٹوارے پہ نہیں، بلکہ ہر وہ قانون جو اسلامی قانون ہے اس کو شرعی قانون کہا جاتا ہے۔ اب حکومتوں کی جانب سے، کچھ فرقہ پرستوں کی جانب سے اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی جانب سے ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے اپنے اسلامی قانون میں مداخلت کرتے ہوئے ہمارے اپنے دین سے ہم کو دور کیا جائے اور ہم کو گناہگار بنایا جائے۔ جب حضور فرما دیے، اللہ فرما دیا کہ ایک مرد اپنی بیوی کو 3 بار طلاق اگر ایک ساتھ بول دیتا ہے تو یہ قرآن کے طریقے کے خلاف ہے،
एक मर्तबे में 3 तलाक बोलना, लेकिन अगर कोई नादानी में यह बात बोल देता है तो वो तलाक हो जाती है। लेकिन कुछ औरतें जो इस्लाम से फिर गई, बदमज़हब हो गई, गैर कौम के लोगों से जो शादी कर लिए, वैसे कुछ औरतें सुप्रीम कोर्ट में जाके इस कानून के खिलाफ बोलने लगी। तो इनका अहम मकसद यही है कि हम मुसलमानों को आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूर करना और अल्लाह की रस्सी को जो हम मजबूती से थामे हुए हैं उससे हमको छुड़ा देना। और अगर अल्लाह ना करे, करोड़ बार खुदा ना खास्ता, अगर कोई इंसान ये करता है, कोई मुसलमान ये करता है, तो उसकी आखिरत तबाह ताराज हो जाएगी। तो मैं जैसे कि शुरू में आपसे अर्ज कर चुका हूं कि हमारे लिए दुनिया कैद खाना है। अब कैद खाने में तो काफी मुश्किलें आएंगी, काफी परेशानी आएंगी, काफी मशक्कत करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जब हम मशक्कतें करेंगे, मुश्किलात उठाएंगे, अपने आप को जो है दीन की तरफ ढालेंगे, तब जाके नतीजा रोज़े महशर हमारे हक में होगा। तो हमारी जो जिंदगी है, किसको क्या गारंटी है कि कब तक रहने वाले हैं? एक लम्हा हम सांस ले रहे हैं, दूसरे लम्हे की हमारे पास गारंटी नहीं है कि हम जिंदा रहने वाले हैं या मर जाने वाले हैं। तो हमको ये सोचना है कि हमारा एक एक लम्हा अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर गुजारना है। तो यहाँ पर कुछ साजिशें ऐसी हो रही हैं जिससे कि हमारे मजहब इस्लाम में मुदाखलत कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी खवातीन बैठी हुई हैं, उठने से पहले इस बात का अहद लें, इस बात का अज़म करें कि हमको हमारी जिंदगी शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारना है और उसी में जीना है, उसी के साथ मरना है। और दूसरी बात, हमारी अपनी जितनी और बहनें जो आपके घर के अतराफ होगी या आपके रिश्तेदार होंगे, उन तमाम को इस जानिब तवज्जो दिलाएं कि देखो हमारे अपने मजहब इस्लाम में, हमारे दीन में कुछ लोग तब्दीली लाने की बात कर रहे हैं जो सुबह क़यामत तक मुमकिन नहीं है। अल्लाह उसका रसूल जो खान निसार होती है तो यकीन जानो हमारी आखिरत कामयाब होगी। तो यहाँ पर हालात जो है बहुत ही खराब है। किसी तरीके से इस्लाम के कानून को तकलीफ देना या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हम सबको मुनज़्ज़म होते हुए, मुत्तहिद होते हुए इस जंग में हिस्सा लेना है, इसकी जिद्दोजहद करना है। और ये जो आप लोगों को दस्तखतों के लिए आज जो जहमत दी गई है वो ये है कि उनका ऐसा ख्याल है कि मुस्लिम खवातीन शरई कानून पे नहीं चलती हैं, लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान जितनी खवातीन हैं, जितनी मुस्लिम खवातीन हैं, वो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न सिर्फ चलती है बल्कि उसमें से अपनी जान निसार करने के भी तैयार है। तो ये जो दस्तखतें आप लोग करेंगे, ये सारी दस्तखतों के जितने भी हमारे पास 1 लाख 2 लाख जितने भी पर्चे जमा होंगे वो सारे ले जाके हुकूमत में और कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे और ये बतलाया जाएगा कि जो तुम्हारा ख्याल है, ये जो तुम्हारा इल्जाम है कि मुस्लिम खवातीन शरीयत पर नहीं चलती हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देने का ये एक आसान तरीका है कि हम अपनी दस्तखतों के जरिए उन तक ये पैगाम देंगे कि हम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न सिर्फ शरीयत पे चलते हैं बल्कि उस पर अपनी जानिसार करने के लिए भी तैयार हैं। तो आप तमाम खवातीन से मेरी ये ख्वाहिश है कि आप अपना आधार नंबर या और कोई आईडी प्रूफ नंबर इसके अंदर डालें तो इस कागज का वजन बढ़ जाएगा। आपके नाम के साथ दस्तखत करते हुए आधार या आईडी नंबर डालिए ताकि हमारे दस्तावेजात हमारी शरीयत मोहम्मदी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मददगार साबित हो और दुश्मनों को इसका हम मुंह तोड़ जवाब दे सके। तहरीक यही ख़त्म नहीं होगी। आप तमाम खवातीन से मेरी ये गुजारिश है कि जाते वक्त हर खातून 10-10, 20-20 पर्चे लेकर जाएं और अपने खानदान में जितने भी लोग हैं या पड़ोस में हैं उनसे दस्तखत लेते हुए लाके यहाँ पर दफ्तर पे जमा करें, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। 5 तारीख तक हमारे पास वक्त है, फिर 5 के बाद पेशी है कोर्ट की, तो उसमें ये दाखिल करना है, फिर वो पेशी के बाद और भी जमा करेंगे, लेकिन 5 तारीख तक जितनी जिद्दोजहद हो सके करें और ये दस्तखतों को जमा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए जी अच्छी बात, दस्तखत कर दीजिए। चलो हाजी भी आओ, दस्तखत करो। का नाम महल्ले का नाम क्या है लिख दीजिए, एड्रेस। माशाल्लाह काफ़ी ख़वातीन आई हैं, देखिए अच्छी बात है, जज्बा है ख़वातीन।
आइए हाजी जी, आइए दस्तखत करो, अंगूठा लगाते। अच्छा आप आओ मैंने स्टैम्प पढ़ाई जाता हूँ इन पढ़ाई जाता हूँ वो लगता है कि अपन आधार लगा तो अटैच हो जाता हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। थंब इम्प्रेशन में से एड्रेस जो भी वो लिख दीजिए, एरिया का नाम लिख दीजिए, आपकी एरिया महल्ले का का नाम, डोर नंबर लिख दीजिए। फोन नंबर लिख दो। अच्छा जी। साइन यहाँ करें, शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीरतुन्नबी एकेडमी की जानिब से कॉमन सिविल कोड के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जा रही है, क्योंकि कॉमन सिविल कोड जो है ये सीधे सीधे रास्त तौर पर शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुदाखलत है और मुसलमान हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में राय बराबर भी किसी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी के तहत, इसी नज़रिए के तहत सीरतुन्नबी एकेडमी की जानिब से एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जा रही है, जो 25 सितंबर को खिलवत मैदान पर एक बहुत बड़ा जलसे आम हुआ, जिसमें न सिर्फ रियासत बल्कि बैरूनी रियासत से भी उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम तशरीफ़ लाए और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाया। और आज उसकी एक दूसरी कड़ी थी, जो ख़वातीन की दस्तखती मुहिम का आज आगाज़ किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में इस मुहिम में ख़वातीन हिस्सा लिए। और ये मुहिम यहीं रुकने वाली नहीं है, बल्कि महल्लेवारी सतह पर भी इसके कैंप्स चलाए जाएंगे और मुस्लिम ख़वातीन से दस्तखत ली जाएगी, और ये जब दस्तखत तमाम मुकम्मल हो जाएंगे तो इसको हुकूमत हिंद को और सुप्रीम कोर्ट में ये दस्तावेज़ात दाखिल किए जाएंगे। मैं तमामी मुस्लिम ख़वातीन व मर्द हज़रात से इस बात की अपील करता हूँ कि इस मुहिम में हिस्सा लें और इस तहरीक को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। आइंदा जो कोर्ट की पेशी है सुप्रीम कोर्ट में, जो कॉमन सिविल कोड के ऊपर जो पेशी होने वाली है, वो 6 अक्टूबर को जो मुकर्रर की गई है। इंशाअल्लाह 6 अक्टूबर को पेशी होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सीरतुन्नबी एकेडमी, जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से इसमें पैरवी की जा रही है और इसमें मौसूर पैरवी की जाएगी और अपना जो पक्ष है वो रखा जाएगा। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीरतुन्नबी एकेडमी की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का हिंदुस्तान के अंदर बेड़ा उठाया गया है, वो आज आवाम के सामने है, मुसलमानों के सामने है। जो एक ज़िम्मेदाराना अमूर की अंजाम दही के लिए सीरतुन्नबी एकेडमी जो कोशिश कर रही है, आज उसके ज़िमन में ख़वातीन के लिए एक दस्तखती मुहिम रखी गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और कुछ फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की जानिब से इस बात को इस मुल्क के क़ानून में अटैच किया जाने की कोशिश की गई कि 3 तलाक़ का मसला है और दूसरे कई पेचीदा मसाइल है, जिसके अंदर जो है हुकूमत हिंद और कुछ तंजीमें मदाखलत की कोशिश कर रही हैं। तो उसका एक मुनज़्ज़म तरीके से जवाब देने के लिए सीरतुन्नबी एकेडमी सुप्रीम कोर्ट में एक बिल दायर की है, जो बराबर दौराने जो है टेबल है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सीरतुन्नबी एकेडमी की जानिब से आज जो दस्तखती मुहिम हम जो लिए हैं ख़वातीन की, तो इसी तरीके से दस्तखती मुहिम तेलंगाना के और मुल्क के दीगर हिस्सों में इंशाअल्लाह मुनक़िद की जाएगी। और ख़वातीन का जो मौक़ूफ़ है, वो मौक़ूफ़ को हुकूमत हिंद को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और दीगर क़ानून नाफिज़ एजेंसी या जो करने वाली है उनको पेश किया जाएगा और मुसलमानों के मौक़ूफ़ से और सीरतुन्नबी एकेडमी की कोशिशों से उनको वाकिफ़ किया जाएगा। और हत्तल इम्कान ये कोशिश की जाएगी पुरअमन तरीक़े से कि किसी भी तरीक़े से शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी की मदाखलत ना हो। और हुकूमत हिंद को हम ये बता देना चाहते हैं कि मुसलमान अपनी जान दे सकता है, अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सीरतुन्नबी एकेडमी की जानिब से इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और आवाम से अपील करता हूँ कि आवाम का और खुसूसन मुसलमानों का ताउन इंशाअल्लाह हमारे साथ रहे। सुप्रीम कोर्ट में जो दायर किया गया जो बिल है, उससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं और उसी ज़िमन में एक जलसा भी मुनक़िद किया गया था और माशाअल्लाह जलसे के बाद आज नायब वज़ीर आला जनाब महमूद अली साहब
राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की है और ये तयक़ुन ली है कि शरीयत में कोई मुदाखलत नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सीरत नबी एकेडमी की बड़ी कामयाबी है और मैं मौलाना गुलाम समदानी अली खाई साहब को मुबारकबादी देता हूँ कि इस कामयाबी के ज़्यादातर हकदार वही हैं। हुकूमत हिंद अगर इस चीज़ को जो है अगर एक्सेप्ट कर लेती है कि वो मदाखलत नहीं करेंगे तो यकीनन मतलब इसके बाद शऊर बेदारी मुहिम ज़रूरी है ताकि आवाम में इसके बाद कोई हुकूमत जो है आकर फिर कोई ऐसा इक़दाम ना किया जाए।